Hello, friends. A very warm welcome to all of you. And continuing in this session of 16th February, uh, we would like to focus upon very important key concepts and themes, which will help us to confidently get success in exam. सबसे पहले इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट. ठीक है, टेक्सटाइल होता है, ऐसे ही हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं. बट हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट? The important point is, what is the status of Indian textiles? What is the share of Indian textiles in the global trade? What kind of schemes, चाहे फिर वो टेक्सटाइल पार्क्स हैं और चाहे फिर वो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, व्हाट इज व्हाट इज कटिंग एज इन इट. साथ में क्या फैब्रिक आज के समय में यूज हो रहा है जो सबसे सस्ता, एक्सेसिबल है, लेकिन साथ साथ में क्या वो इको फ्रेंडली भी है? तो जूट सेक्टर और हैंडलूम्स के आपको पता होना चाहिए, जीआई इंडिकेटर पता होने चाहिए, और साथ में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के स्टेट वाइज हमें एक पूरी लिस्ट हमारी रेडी होनी चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग सके कि ये उस जगह की खासियत है. एंड द टॉप ऑफ इट, टेक्सटाइल के जो सेंटर्स हैं इंडिया में, स्किल सेंटर्स, हर तरह के टेक्सटाइल का एक सेंटर है. इंडिया इज अ ग्रेट, अमेजिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंग लैंडस्केप, वो हमें पता होना चाहिए. कमिंग टू जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसमें हम लीगल एड और नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी की भी बात करते हैं, वी मस्ट नो दैट उसका स्ट्रक्चर और उसका प्रोटोकॉल क्या है. वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड that why mediation is an important theme that is very important for essay ethics, and also even in the interviews it can be a good point if you understand that the road to justice cannot itself become a hurdle to achieve it. That is why mediation is very much important, क्योंकि हर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यूनिक होती है, इसीलिए टेलर्ड सॉल्यूशन चाहिए. We need more number of judges in Supreme Court, and we need infrastructure at district level also. However, structural change required है और social change का भी requirement है. That is why we say that it's an ongoing process. A lot of goodwill and a lot of commitment is required. India's legal aid cover includes 80% of our population. It's a very important fact. Please do think over it and try to think that what it means when we say India's legal aid cover includes 80% of our population. And young force can help bring the objectives of NALSA. So, what are the objectives of NALSA? Prelims have already asked that if you want to get access to the legal services, तो वो कैसे free हैं, and for different sections of society, what are the protocols, what are the requirements, and so on. Similarly, another very important, the burning question is that whether capital punishment is required after 75 years of the constitution, because there is a project called 39A, we have already discussed about it, a criminal justice program at National Law University Delhi, which states that Supreme Court did not confirm a single death sentence in 2024 and 2023, while ट्रायल कोर्ट ने 139 ऐसे वर्डिक्ट दिए. सो रियली में क्या वो सोशल और स्ट्रक्चरल चेंज के लिए कैपिटल पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है? क्या रियली में डेटरेंट है? अगर वो डेटरेंट है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं? दैट इज वाई fundamental rights must be protected, fair trial and safeguard against arrest under the constitution must be practiced at the core. So all these ideas are connected because, as I just said, infrastructure for courts is very important. For example, here a model is given in terms of Karnataka. Maharashtra must follow it. That is what honorable judge is trying to convey. And bail is rule and jail is exception. It must not be seen just a bookish thing. It must be practiced. So
we must also take up, because initially there had been essays on capital punishment, because half of the world, many countries in the world, if you just see, and if we discuss it also later on, then we will find that many countries have given up. Unique social circumstances and cultural fabric, and also the level of maturity and the impact among people is one of the key factors how one can decide. If you think there are more factors, do write back to in the comment section, and also you can WhatsApp when you are writing back the details. आदि महोत्सव यानी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, tribal crafts, culture, cuisine, and commerce. Very important. You must know which bodies are there. For example, Trifed is there. You must know what is the scheme. You must know PVTGs, that what areas do they inhibit, what kind of government support is there, and you must also see the kind of traditional products, चाहे वो महुआ हो, चाहे फिर वो हनी हो, एंड सो फोर्थ. प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी एक संभावना रहती है इफ यू कनेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ट्राइबल्स, रिवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट टुगेदर. इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड सिंस तालिबान के आने के बाद से उसमें क्या एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है. एक्सपोर्ट स्लम्प हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्ज हुए हैं. हमने इंपोर्ट किया, हम एप्पल भी इंपोर्ट कर रहे हैं. एप्पल में वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है इंडिया के लिए, टर्की और ईरान के अलावा. हम कह सकते हैं फ्रूट्स भी आ रहे हैं कांधार से वाघा बॉर्डर के थ्रू. साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और हींग एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, गार्लिक है, एंड वन कैन से दैट एस्फेटाइडा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हींग, एंड रेजिन्स यानी किशमिश, ये भी हम बहुत हद तक अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं. सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिग्स हैं, एंड सैफरन है, फेनल सीड्स है, आलमंड्स हैं, एप्रिकोट्स हैं, ओनियंस हैं, पॉमग्रेनेट्स हैं, इवन वॉलनट्स भी. इंडिया के जहां तक एक्सपोर्ट करने की बात है, इंडिया इज डूइंग इट इन इंक्रीमेंटल मैनर. when Afghanistan businessmen will be allowed and they will be coming over to India, and that's how from Indian side export will be increased common. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, चाहे वो सलमा टाइम के लिए हो, चाहे वो अफगान पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर के लिए हो, चाहे वो या ना या अफगानिस्तान के ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए हमने जो इंपोर्ट वेवर्स भी दिए हैं, वो सारे एलिमेंट हमें देखने होंगे. तब हम उसको कलेक्टिव फॉर्म में देख सकते हैं कि इंडिया का कैसे यहाँ से भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड चाहबार पोर्ट से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके पूरे तरीके से हाई पीक पर फंक्शनल अभी होने की इमीडिएट में संभावना नहीं है. इट इज मूविंग ऑन, दैट इज व्हाई इट इज डूइंग इन अ कन्वेंशनल ट्रेड रूट, जो कि आपके पाकिस्तान से होकर आएगा. सो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होगा कि क्या ऐसा यहाँ सिर्फ इंडिया अफगानिस्तान की बात है, तो क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कोई ट्रेड हो रहा है? प्लीज डू. इंडिया म्यांमार में क्या हो रहा है, इंडिया नेपाल में क्या हो रहा है, इंडिया श्रीलंका में क्या हो रहा है, इंडिया बांग्लादेश में आपको पता होना चाहिए. सो ऑल दीज एलिमेंट्स हेल्प अस टू नॉट ओनली हेल्प एंड अपग्रेड आवर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज पेपर 3, बल्कि हमें एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी एक आइडिया मिल जाता है. क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट is a law which is going to empower credit firms to collect data without users consent. विदाउट यूजर्स कंसेंट यहाँ पे की पॉइंट है. तो आरबीआई का कहना है कि इट इज कलेक्टिंग फाइनेंशियल डेटा of banking users by credit rating companies to prepare credit scores, and the reason is non-performing assets. The reason is जो आप कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक इकोनॉमिक क्लैरिटी और बैंकिंग सेक्टर को एक ऑब्जेक्टिविटी के लिए ऐसा जरूरी है. ये एक्ट लाया गया था सो दैट रिस्क मिनिमाइज किया जा सके, एनपीएस को घटाया जा सके, और जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वट एवर दे आर कलेक्टिंग, दे आर शेयरिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स. दैट इज वाई आरबीआई ये कहता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, और आरबीआई ने
ये चाहा है कि इसको एक हेल्दी तरीके से देखा जाए. दैट इज वाई when it comes to sanctioning of loans, it must become more easier, it must become more smoother, and साथ में one must be able to pay back also. We keep on reading about so many issues which are done in an unconstitutional and illegal way. उनका support RBI नहीं करता है. So again I would say you that please do look that what kind of other roles RBI is playing, एक सेंट्रल फाइनेंशियल और सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटर होने के अलावा भी. One more example that in India, far flung areas also, which are not part of the mainstream landscape, Darjeeling being very very important. So national program के तहत country का पहला bio bank in a zoo, पद्मजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क, बेटर नोन एज दार्जिलिंग जू, वहां से हुआ. सीसीएमबी दैट इज सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इस फैसिलिटी को प्रमोट किया, स्मूथली इसको इनैक्ट करने में मदद की. The facility collects and preserves cells and tissue samples from endangered animals as well as reproductive cells from deceased animals, ताकि फ्यूचर रिसर्च के लिए देखा जा सके और जरूरत पड़ने पर हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है उनको हम वापस ला सकें. सो द बायोबैंक, जिसको फ्रोजन जू भी बोला जाएगा, इसके अंदर आप डीएनए मटेरियल, सेलुलर एंड टिश्यू सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हम उन प्रजातियों को दोबारा जिंदा कर सकें. सो दिस showcases that India is moving ahead. India is using advanced and also progressive technologies, and it is very important because conservation of critically endangered species अगर नहीं हम करते हैं तो इससे इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारा भी बहुत नुकसान है. सेल एंड जर्म प्लाज्म जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो जरूरत होगा तो उसको दोबारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी वापस लाया जाए. It is part of national plan. It is part of high-end expertise. It is part of our thinking that हमें हर हाल में डाइवर्सिटी को भी बचाना है. Animals like American black-footed ferret, which had once only 8 individuals left and once declared extinct but revived through captive breeding and using preserved DNA. Its first clone was made public in 2021 using the DNA preserved since 1988. And northern one-horned rhino, the last male member died in 2018, are being brought to life through this process. So very important from the prelims perspective. चाहे फिर वो रेड पांडा की बात हो, प्लीज डू मेक अ लिस्ट एंड डू चेक आउट पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ है, सो दैट एक्सक्लूसिव और फ्रिंज एलिमेंट को या ऐसी किसी बात को जो हमारी आंखों के सामने नहीं आई है उसको हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यूज कर सकें. दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी अगर ये कहती है कि वाटर पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, उसके तहत हमें एयर और वाटर का हर हाल में मिसयूज नहीं करना है, हर हाल में हमें कंजर्व करना है, हर हाल में बचाना है. तो यू हैव टू जस्ट थिंक फ्रॉम ए केस स्टडी पर्सपेक्टिव कि ऐसा आखिर क्या किया जाए, डेयरी फार्म्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए. थिंक ऑफ वन और टू पॉइंट्स. एंड सेकेंडली, दिल्ली पर अगर हम जोर दे रहे हैं तो व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ इंडिया, क्या वहां पर वाकई बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही प्लान, बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या आपको लगता है कि दिस इज एन अर्जेंट एंड a very very important issue which must be taken care of. इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि उत्तराखंड का पर कैपिटा इनकम is higher than the national average. Now, this showcases what had been the planning of that state, what had been the ecosystem in that state, what had been the economic circumstances, what had been the kind of uh, occupations. So इससे हमें आइडिया लगता है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी स्टेट जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, अगर वो हमें बताता है कि उस स्टेट की ग्रोथ किस तरीके से, तो वी कैन ऑलवेज मेक आउट स्टेट लेवल का जो जीडीपी है, स्टेट लेवल की जो पॉवर्टी कंडीशन भी है, स्टेट लेवल की जो मैन्युफैक्चरिंग भी है, स्टेट लेवल की जो सर्विसेज भी है, वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट. जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका हमें आइडिया लग जाता है. तो प्लीज लुक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एंड
ट्राई टू सी, बिकॉज इन द प्रीलिम्स ऑलरेडी स्मार्ट मीटर्स पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रीपेड मीटर्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है, सोलर पावर पे भी आ चुका है, तो जस्ट ट्राई टू थिंक दैट सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट हाउ दे कैन फिट इनटू द एग्जामिनेशन लेंस। किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए लिंग्विस्टिक और उसकी लिटरेरी हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिटीजनशिप के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, सॉफ्ट पावर दर्शाती है। क्या इंडिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये एक हमें हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दर्शाता है। सो लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी हेरिटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैड गॉट सो मैनी नॉट जस्ट प्रिंट बल्कि डिजिटल हेरिटेज की अगर हम बात करें वो भी हमारी बढ़ रही है। लेकिन जो ट्रांसलेशन इकोसिस्टम है वो हमारा उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, उसकी तरफ काम करने की जरूरत है। इंडिया फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ओपन एक्सेस क्राउड सोर्स डेटाबेस ऑफ इंडियन ट्रांसलेशन अब सर्चेबल है, जिसको आपने भाषावाद का नाम दिया। सो ये एक लिविंग आर्काइव है, 14,000 प्लस एंट्रीज हैं, 7,000 के आसपास ट्रांसलेटर्स हैं, ऑथर्स हैं। और भाषावाद का डेटा हमें बताता है कि किस तरीके से जो टॉप 10 ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस हैं वो हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है। सो टॉप पब्लिशर कौन है ट्रांसलेशन का? नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकेडमी, पेंगुइन, एंड देन वाणी प्रकाशन, गुर्जर ग्रंथ गुजराती में, डीसी बुक्स इन मलयालम एंड डेज इन बंगाली। टॉप ट्रांसलेटेड ऑथर्स की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, डू चेकआउट उनके काम को आप देखिए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के अलावा प्रेमचंद है, अमृता प्रीतम है, विलियम शेक्सपियर हैं, सद्दात हसन मंटो की किताब देखिए। विलियम शेक्सपियर के अलावा माहेश्वता देवी प्लीज देखिए, उनका एक काम देखिए, एंड जूल्स वर्ने एंड सत्यजीत रे। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी हमारे लिटरेरी जाइंट्स हैं, यूपीएससी ना सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पूछती है बल्कि हर राज्य का, हर भाषा का, यदि आप दो या एक या तीन खास ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने आप में रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जितनी गरिमा और करिश्मा रखते हैं, तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। सो इन्वेंट्री धीरे धीरे एक्यूरेट होती जाएगी, इन्वेंट्री धीरे धीरे लेसर नोन भाषाओं की तरफ बढ़ेगी, जैसे संथाली, और सारी शेड्यूल लैंग्वेजेस के अलावा यदि बोलियां हैं और मतलब उनका भी अगर ग्रामेटिकल हेरिटेज है तो उसको भी आगे लाने की कोशिश करें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेसर नोन एस्पेक्ट जिसको हमें समझना चाहिए। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025, वेस्ट जब तक ये नहीं समझेगा कि वो जो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा है वो बाहर भी करे, तब तब देर इज अ डायकोटॉमी रहेगी। ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने कहा कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जब तक वो ग्लोबल साउथ में प्रमोट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान का प्रॉक्सी टेररिज्म है और चाहे फिर वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर लेथार्जी शो करना या अपने फायदे के लिए मर्सनरीज और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। And the cost will be paid by them also, whether it is developed country and so on. So India is believing in the positive nurturing, चाहे फिर वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे फिर वो एमजी नरेगा हो, चाहे फिर वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, इंडिया ट्रूली बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड टेक पेन ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हो सके। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ challenges and conversations, लेकिन ये देखिए कि इंडिया उसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडिया ने इन लास्ट 25 to 30 years कुछ ऐसा नहीं किया जिससे जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है उसको वो निगेट करे। इंडिया इज मूविंग इन ए वे जहां पर वो वर्ल्ड लीडर की तरह पेशेंस के साथ और विदाउट गोइंग आउट ऑफ द वे अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। तो इट मस्ट बी सपोर्टेड एंड इंडिया मस्ट गेट द ड्यू क्रेडिट एंड ऑल्सो ड्यू लीवरेज फॉर दैट इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, इसी से मैं जोड़ देता हूँ, प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ 22.5 मिलियन पीपल अंडर स्वामित्व, यानी कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो विलेजेस में डी अनलॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के साथ साथ अब वो मोनेटाइज हो सकती है, अब वो बैंकेबल प्रॉपर्टी है। इससे काम धंधा बढ़ेगा, इससे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और इससे जो बीच का जो व्हाट आई कैन से जो करप्शन है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी इससे कम हो।
अनदर एग्जांपल हियर इज गिवन इज ऑफ द कमर्शियल कोल माइनिंग, जो प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आल्सो. सो ऑल दीज एलिमेंट्स एंड आइडियाज दे दे रिफ्लेक्ट दैट हाउ इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड. जब हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, उसके बाद हम इन चीजों को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स में डाल सकते हैं. बैंकिंग सिस्टम से सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, एमएसएमई का लोन लेकर उसको प्रॉफिटेबल और उसको चलाना भी है. फॉर एग्जांपल मखाना और फॉक्सनेट, जिसकी चर्चा अब न्यूज़पेपर में रही है, लेकिन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आना मुश्किल है. पर इसकी अंडरस्टैंडिंग से आपकी जो प्रीलिम्स और मेंस का जो अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है. इसी कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी से दैट विकसित भारत का रोड मैप कैसे बनेगा, सो ऑनरेबल मिनिस्टर सेज कि एक डिकेड पहले हमारे यहाँ सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज हमारे यहाँ 118 यूनिकॉर्न, जो हमें 2047 तक विकसित भारत तक ले जाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी विल ट्राई वी विल ट्राई नॉट ओनली टू अचीव दैट एज सुन एज पॉसिबल बट ऑल्सो टू लीड अदर्स ऑल्सो. हम एक रोड मैप, इंडिया एक रोड मैप बना रहा है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ पीपल आर विल नॉट बी कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, दे विल बी नियो मिडिल क्लास. चाहे फिर वो गति शक्ति के थ्रू हो, चाहे फिर वो आपका आरआरटीएस के थ्रू हो, चाहे फिर वो वंदे भारत के थ्रू हो, तो एवरीथिंग इज लिंक्ड. सो यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद एक तरफ एआई है, एक तरफ हम बात करते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी है, पंचायत का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. डे बिफोर यस्टरडे ओनली वी वर स्पीकिंग अबाउट हाउ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एट द panchayat and urban municipality level. Now you have to link these ideas with that and you will be able to understand better. Supersonic aircraft are being tested in the US, but are they sustainable? So the first supersonic flight of Boom supersonic demonstrator aircraft took place at Mojave Air and Spaceport in California. अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी डिजाइन कर रही है सुपरसोनिक एयरलाइनर्स को और उसे वो बूमलेस क्रूज कहती है. तो क्वेश्चन अराइजेस कि जो ओवरचर है वो वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड सुपरसोनिक जेट है और फर्स्ट सिविल सुपरसोनिक जेट जो है अमेरिका में ही बनाया गया है, क्योंकि कॉनकॉर्ड सर्विस से 2003 के बाद रिटायर कर दिए. अब ट्रायल्स तो किए गए हैं और इसमें डिफरेंट बॉडीज का भी रोल है, लेकिन जो बूम है वो बोलता है कि मार्केट तो मिलेगा कम से कम 1000 सुपरसोनिक एयरलाइनर्स का, और वो 500 वायबल रूट्स और फेयर्स की बात करते हैं. बूम ओवरचर जो है वो मैच 1.7 दैट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड तक वो ट्रेवल कर सकते हैं और वो 2029 तक शुरू हो सकते हैं. फास्टेस्ट एंड मोस्ट सस्टेनेबल सुपरसोनिक एयरलाइनर. 88 पैसेंजर्स एक बार में जाएंगे और 1.7 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड. बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या इससे सिर्फ फ्लाइट टाइम कम होगा, लेकिन क्या आप स्टेबल तरीके से भी कर पाएंगे? क्या इसमें हेल्थ या फिर सेफ्टी या फिर इट विल बी एक्सेसिबल टू ऑल? बिकॉज कार्बन एमिशन जो अपने आप में इतना बड़ा एक इशू है एविएशन इंडस्ट्री में, और ग्लोबल एयरलाइंस जो हैं वो कमिटेड हैं कि हम नेट जीरो एविएशन कर देंगे 2050 तक, क्या ये वहां पर सपोर्ट कर पाएगा? तो कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स जब हॉल्ट की गई थी, हाई कॉस्ट, हाई फेयर्स, एक्सेसिव लाउड नॉइज, और कितना फ्यूल्स वो कंज्यूम करते थे, प्रॉफिट की बात तो अपनी जगह है ही. सो दैट इज वाई कॉनकॉर्ड्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लाइंग ओनली ट्रांस अटलांटिक रूट्स. ओवरऑल वेस्टर्न मॉडल है. ओवरऑल इंडिया तो उड़ान की बात करता है, इंडिया सस्टेनेबल और बजटिंग की बात करता है, इंडिया एविएशन के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट है. इंडिया इस तरफ नहीं भाग रहे हैं. वन मोर एस्पेक्ट दैट इज गिवन हियर इज ऑफ सबसोनिक्स व्हिच अकाउंट्स फॉर ऑल एयरक्राफ्ट करंटली इन कमर्शियल ऑपरेशन. वो ऑब्वियसली लेस कार्बन एमिशन की तरफ जुड़े हुए हैं. So from that context, you have to see this, and the concept of synthetic e-kerosene, ये भी आपको ज़्यादा सर्च करके देखना चाहिए, and you can always write. Now, another very important aspect is of deep sea fishing.
और मैरीन हेरिटेज की अगर हम बात करें, सो डीप सी फिशिंग इंडिया की जब मेरिडियन हेरिटेज की हम बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमें और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, हमें डाइवर्सिटी अगर स्पीसीज की बात करें उसे कंजर्व और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और प्लीज डू लुक इनटू बोथ डीप इनलैंड एंड मैरीन। जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देयर आर नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन दैट रिगार्ड। प्लीज डू मेक अ नोट कि कहाँ कहाँ पर हमारे इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं एंड हम कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट ऑफ फिश बट यू शुड लुक ऑफ ऑल मैरिन हेरिटेज। So please do write back. You can write in the comment section. You must WhatsApp also when you make your own notes so that a kind of an analytical conversation can be made. So with this point, I wish you all the best for your studies. Do join us and get success in an authentic, scientific, and courageous manner. Thank you very much.